So let's start with doubt session on matrices. We have received three doubts. Three questions are there. Let us see one by one. First question is question number 195. Question number 195. If this given matrix is equal to another matrix, then we have to find out value of x, y, p, q. Clear? So here, as you can see, both the matrices are of 2 by 2, and by equality of matrices, what you can say, you get four equations total. So first equation is 2x plus y. It is equal to 1. So that is first equation. Second, x plus y. It is also equal to 1. Third, p minus q. It is equal to 0. And fourth equation, p plus q is also equal to 0. So we'll solve these two equations simultaneously so that we will get value of x and y. And we will again solve these two equations simultaneously for the values of p and q. तो अगर पहले दोनों इक्वेशन हम करते हैं तो यहाँ पर प्लस y इधर भी प्लस y, तो यू कैन मेक 1 minus 2. ठीक है, 1 minus 2 अगर हमने किया तो 2x minus x is x, y minus y is 0, it is equal to 1 minus 1, it is 0. So you got value of x as 0. फिर सेकंड इक्वेशन से हमें मिलेगा, सेकंड इक्वेशन से x मतलब 0 plus y is equal to 1, and this implies y is equal to 1. तो x 0 हो गया, y 1 हो गया. अब थर्ड और फोर्थ की अगर हम बात करें तो इधर माइनस टू इधर प्लस टू, तो वी कैन ऐड देम 3 plus 4. ऐड जैसे हमने कर दिया, so p plus p it is 2p, माइनस q plus q कट हो गया, it is equal to 0 plus 0 is 0. So this implies p is equal to 0. p की वैल्यू किसी एक में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में डालते हैं. ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में अगर हमने डाल दिया तो p plus q, p is 0 plus q which is equal to 0, and therefore q is also equal to 0. तो जो x by pq हमें पूछा गया था, it is nothing but x मतलब 0, y 1, p 0, q 0. So that is your answer. Is it clear? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए. ओके, चलिए. So let's move on to next question. Question number 269. Let p is equal to cos pi by 9 sin pi by 9 minus sin pi by 9 cos pi by 9. So this is the given matrix P. Alpha, beta, gamma, the non-zero real numbers such that alpha, beta, gamma belongs to R and they are not equal to 0. Such that alpha p raised to 6, alpha p raised to 6 plus beta p raised to 3 plus gamma I is the zero matrix. Plus gamma I is the zero matrix. Then
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस gamma square bracket raised to alpha minus beta, beta minus gamma, gamma minus alpha is equal to what? That is the question. Question number 269. Okay. Now, here we will have given matrix is P. We have to find out P raised to 6, P raised to 3. Identity matrix we know. ठीक है, हमें मालूम है. Identity matrix तो मालूम है. P raised to 3 और P raised to 6 हमें निकालना होगा. Then we can use this identity so that we get value of this expression. ठीक है. चलिए, let's solve this. अब यहाँ पर P raised to 6 और P raised to 3 हमें दोनों भी चाहिए. हमें P raised to 3 भी चाहिए, P raised to 6 भी चाहिए. So in this type of question एक जनरलाइजेशन होता है. इस तरीके से नहीं होता है कि आप P raised to 3 मतलब P into P उतना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे. फिर P raised to 3, P raised to 6 आपको कैसे मिलेगा? P raised to 3 अगेन into P raised to 3. ठीक है, तो आपको मिलेगा. बट इन दैट केस बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत सारा. तो हम जनरलाइज कर सकते हैं क्या, उससे पहले देखते हैं. तो अगर मैं P से P स्क्वायर सबसे पहले तो हमें P स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा. अगर P क्यूब भी निकालना है हमें तो हमें तो सब now P square is nothing but P into P and it is equal to matrix P. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ and again multiplied by P. So this is P square, that is P into P. अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं. So this is equal to what? 2 by 2 multiplied by 2 by 2. Answer is 2 by 2. ठीक. First row, first column. First row, second column in this way. So cos into cos, that is cos square pi by 9. यहाँ पर sin into minus sin, that is minus sin square pi by 9. Then cos into sin, that is sin pi by 9, cos pi by 9, and here again plus cos into first row, first column, first row, second column, cos into sin, sin into cos. So that is sin cos pi by 9. ठीक है. नेक्स्ट माइनस साइन से अब इससे मतलब सेकंड रो से करेंगे. सो माइनस इनटू दिस वन, दैट इज माइनस साइन cos pi by 9 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस साइन pi by 9 cos pi by 9. फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन इनटू साइन, साइन स्क्वायर. सो दैट इज माइनस साइन स्क्वायर pi by 9 cos into cos is cos square pi by 9. ठीक है. अब ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया मल्टीप्लिकेशन. अब सिंपलीफाइड फॉर्म देखते हैं. दिए हियर यहाँ पर ये टर्म और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है. cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. ठीक है. तो ये फार्मूला कौन सा है इसके लिए? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. बताइए किसका फार्मूला है, कौन बताएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. Yes, Kalyani. Correct. It is the formula for cos
2 थीटा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा cos 2 थीटा। तो यहाँ पर जो है cos 2 थीटा है, मतलब कि cos 2 पाई बाय 9, बिकॉज थीटा इज पाई बाय 9, इधर भी cos 2 पाई बाय 9। अब बचे दोनों टर्म्स, अगेन दिस टू टर्म्स आर सेम, ठीक। यहाँ पर ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, यहाँ से अगर हम माइनस साइन, दोनों जो माइनस है, माइनस साइन अगर कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा sin पाई बाय 9 cos पाई बाय 9। सो दिस इज नथिंग बट sin थीटा cos थीटा, ठीक है। दिस इज sin थीटा cos थीटा प्लस अगेन sin थीटा cos थीटा, सो इट बिकम्स व्हाट, 2 sin थीटा cos थीटा। और ये किसके लिए फार्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा। यस कर लेने, करेक्ट है। दिस इज फार्मूला फॉर sin 2 थीटा, ठीक है। बहुत ही सिंपल फार्मूले मालूम होने चाहिए सबको, ठीक है। तो यहाँ पर sin 2 थीटा मतलब कि 2 पाई बाय 9 हो जाएगा। इधर हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो इधर माइनस आ गया। एंड अगेन दिस इज sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा मतलब sin 2 थीटा मतलब sin 2 पाई बाय 9। यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा था, दिस इज cos 2 पाई बाय 9 एंड दिस इज नथिंग बट p स्क्वायर, क्लियर, दिस इज p स्क्वायर। अब अगर हमें यहाँ पर पी क्यूब चाहिए और पी रेस टू 6 चाहिए, तो अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मेथड से जाते हैं, दैट इज लेबोरियस मेथड, ठीक है। एक लेबोरियस मेथड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आपको पी क्यूब निकालना होगा, ठीक है। मैं अल्टरनेटिव यहाँ पर लिखता हूँ जो लेबोरियस मेथड होता है। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज देन यू विल नॉट गेट टाइम टू सॉल्व दिस वन, ठीक है। अल्टरनेटिव में आपको मुझे पी क्यूब निकालना है तो मैं निकालूंगा, पी स्क्वायर मैंने निकाल लिया ऑलरेडी, उसको मैं पी से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि खाली ये मल्टीप्लीकेशन वाला प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद में फिर आपको यहाँ पर ढेर सारा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स नॉट ओनली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन आल्सो। फिर चलिए पी क्यूब निकाल लिया, फिर आपको पी रेस टू 6 चाहिए, फिर आप निकालेंगे पी रेस टू 6 इज नथिंग बट पी रेस टू 3 इनटू पी रेस टू 3। तो दो बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों बार मैट्रिक्स के अंदर जो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है वो करना पड़ेगा। So this is quite lengthy. This is not at all suggested. ये हो ही नहीं सकता। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन देखा था। ये P है मतलब P रेस टू 1 है, ठीक है। P मतलब P रेस टू 1। So it is cos 1 पाई बाय 9, हर एक जगह पर 1 पाई बाय 9 आया है। जैसे मैंने P रेस टू 2 लिया तो 2 पाई बाय 9 एंगल हो गया, बाकी रेशो वही है। देखिए cos sin माइनस sin cos, cos sin माइनस sin cos, रेशो वही है। तो हम इनके अंदर लिख सकते हैं कि P रेस टू n, ठीक है, P रेज़ टू n is nothing but cos n pi by 9 sin n pi by 9, इधर यहाँ पर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, 1 अगर हमें 1 पाई बाय 9 है, 2 अगर 2 पाई बाय 9 है, तो n पाई बाय 9 होगा। एंड फ्रॉम दिस वी विल गेट p स्क्वायर। p स्क्वायर तो हमने निकाल लिया था p क्यूब, तो हमें n की वैल्यू क्या लेनी होगी यहाँ पर, we'll replace this n by 3, so it will become cos 3 पाई बाय 9 sin, फिर माइनस साइन, लास्ट में अगेन cos, so this is p raised to 3। हमें p raised to 6 भी चाहिए, तो p raised to 6 क्या होगा, p raised to 6, ठीक। चलिए इसी को सिंप्लीफाई पहले मैं कर लेता हूँ, मैंने लिख तो दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ इसे यहाँ पर, कटिंग होगा। सो दिस इज इक्वल टू cos, अब देखिए 3 पाई बाय 9, 3 पाई बाय 9 is nothing but 3 3 जा 9 होता है, so it becomes 1 pi by 3, that is pi by 3। यहाँ पर साइन
इधर माइनस साइन और इधर कॉस। इसकी वैल्यू हमें मालूम है, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो कॉस पाई बाय 3 दैट इज कॉस 60 1/2, इधर होगा √3/2, यहाँ पर माइनस √3/2, इधर 1/2। तो अब ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर हो गया p क्यूब के लिए। सिमिलरली p⁶ के लिए आंसर निकालते हैं, तो इट बिकम्स cos 6 पाई बाय 9, यहाँ पर होगा sin 6 पाई बाय 9, हर एक जगह पर 6 पाई बाय 9 हो जाएगा। टेकिंग n इज इक्वल टू 6। फिर से इधर भी सिंप्लीफाइड आंसर हमें मिलेगा, कटिंग तो हो रहा है यहाँ पर, तो इट बिकम्स cos ऑफ 6 पाई बाय 9 इज नथिंग बट 2 पाई बाय 3 sin 2 पाई बाय 3। अब वैल्यूज डालने के लिए हमें cos 2 पाई बाय 3 मालूम होना जरूरी है और sin 2 पाई बाय 3 मालूम होना जरूरी है। अगर जैसे मैंने बेसिक इधर लिखा वैसे ही और एक चीज हम साइड में लिखते हैं, cos 2 पाई बाय 3 इज नथिंग बट cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 2। ठीक है, 2 पाई बाय 3 मतलब होता है पाई माइनस पाई बाय 2। 3 पाई माइनस पाई इज 2 पाई अपॉन 3। अब cos ऑफ पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला, तो इट इज माइनस cos थीटा, तो इसका आंसर होगा माइनस 1/2। सिमिलरली अगर मुझे sin 2 पाई बाय 3 निकालना है, तो इट इज sin ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला जहां पर साइन पॉजिटिव होता है, सो sin पाई बाय 3 दैट इज √3/2। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो cos 2 पाई बाय 3 जो है इट इज माइनस 1/2, sin 2 पाई बाय 3 इट इज √3/2, इधर माइनस √3/2, यहाँ पर होगा माइनस 1/2, so this is p⁶। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूं। ना लेट अस मूव अहेड। हमारे पास ये गिवन है और ये क्वेश्चन है, ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, p⁵, p⁶ मुझे निकालना था, मैंने निकाल लिया दोनों। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं आगे। p⁶ में यहाँ पर रखता हूँ, और इधर p⁵ की वैल्यू है। So this is p⁵, this is p⁶। अब जो गिवन है मेरे पास, गिवन व्हाट इज गिवन, अल्फा p⁶, बीटा p⁵, gamma I is equal to 0. Let us write down all the matrices. All the matrices will be of order 2 only. तो अल्फा p⁶ क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई होगा p⁶ के साथ, हर एक टर्म के साथ, यहाँ पर हो जाएगा माइनस अल्फा बाय 2, फिर √3 अल्फा बाय 2, इधर माइनस √3 अल्फा
बाय 2, यहाँ पर माइनस अल्फा बाय 2। अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिया p6 के साथ, प्लस बीटा p3, प्लस होगा बीटा p3, इधर p3 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, so बीटा इंटू 1 बाय 2, दैट इज बीटा बाय 2, इधर होगा √3 बीटा अपॉन 2, यहाँ पर माइनस √3 बीटा अपॉन 2, इधर बीटा अपॉन 2, प्लस गैमा इंटू आई, आई मतलब होता है 1001, तो गैमा इंटू आई हो जाएगा गैमा 0 0 गैमा, एंड दिस इज इक्वल टू ओ, मतलब कि जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0। Now solving this equation, we will get certain relation between alpha, beta, gamma, because everything is in now alpha, beta, gamma. चलिए देखते हैं क्या रिलेशन मिलता है हमें। सो देयरफॉर फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, देखिए माइनस अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 प्लस गैमा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो वैसे अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो, बट चलिए मतलब आपको समझने के हिसाब से मैं यहाँ पर मैट्रिक्स में लिखता हूँ। तो दिस इज माइनस अल्फा बाय 2, दिस इज प्लस बीटा बाय 2, यहाँ पर प्लस गैमा। सेकंड में ये एलिमेंट दैट इज √3 अल्फा बाय 2, फिर है √3 बीटा बाय 2 प्लस 0, एक इधर माइनस √3 अल्फा बाय 2 माइनस √3 बीटा बाय 2, लास्ट में 0, फिर माइनस अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 प्लस गैमा, ठीक है, प्लस गैमा, एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नाउ 0 0 0 0। नाउ बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, देखिए यहाँ पर 4 रिलेशन सेट होता है, 4 रिलेशंस आर देयर, 4 रिलेशंस आर देयर, बट अगर हम ठीक से देखें तो ये वाला जो है और ये वाला, ये दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों सेम ही है, तो यहाँ से हमें बस एक ही इक्वेशन मिलेगा, इन दोनों को मिला के एक्चुअली एक ही इक्वेशन मिल रहा है। इक्वेशन क्या है, माइनस अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 प्लस गैमा इज इक्वल टू 0, इधर बोलिए इधर बोलिए दोनों की जगह। और जो दूसरा इक्वेशन है यहाँ से जो मिलेगा और यहाँ से जो मिलेगा दोनों सेम होंगे, क्यों, इधर 0 0 तो निकल जाएगा, यहाँ से अगर हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो राइट हैंड साइड पे 0 के साथ जाकर के वो भी मतलब प्लस हो जाएगा। सो हियर बोथ ऑफ दिस टू आर सेम ओनली, ये दोनों सेम है, तो सेकंड रिलेशन मेरा ये हो जाता है, पॉजिटिव में लिखता हूँ मैं √3 अल्फा बाय 2 प्लस √3 बीटा बाय 2 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो दो रिलेशन मेरे पास है। अब हम इससे इस रिलेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो अभी क्या मिलता है, देखिए 2 से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर √3 बाय 2 कॉमन ले लिया, √3 बाय 2 हमने अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, √3 बाय 2 उधर जाएगा, so we'll get alpha plus beta equal to 0, मतलब beta is equal to minus alpha. What exactly we are trying to find out? We'll find out beta in terms of alpha, gamma in terms of alpha. Substitution method से देखिए यहाँ पर 3 unknowns है, there are 3 unknowns, mathematically देखिए समझिए, mathematically समझिए, there are 3 unknowns alpha, beta, gamma, ठीक है, ये तीनों वैसे वेरिएंट भी है कोरोना के, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अल्फा बीटा गामा, और जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था डेल्टा, वो भी डेंजरस वेरिएंट है। तो यहाँ पर देयर आर 3 वेरिएंट्स वेरिएबल्स अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, तो मुझे मेरे पास कम से कम 3 इक्वेशन होने चाहिए अगर मुझे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करनी है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 0,
गामा इक्वल टू -3, जो भी है एग्जैक्ट वैल्यू अगर मुझे पता करना है तो मुझे 3 इक्वेशन लगेंगे, बट मुझे तो 2 ही इक्वेशन मिल रहे हैं। So obviously I will not be getting exact value of alpha, beta, gamma. नहीं मिलने वाले मुझे, किसी भी हालत में नहीं मिलने वाले। But then what we can get? We can get certain relation between them, alpha, beta, gamma. तो हमने अल्फा को फर्स्ट वेरिएबल को कीपिंग इट एज इट इज विल कन्वर्ट बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, विल आल्सो कन्वर्ट गामा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो यहाँ से हमने बीटा को अल्फा में कन्वर्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में 2 है तो ड्रॉप 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0। बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस ये बीटा, बीटा मतलब अगेन माइनस अल्फा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0। तो 2 गामा कितना हो गया, दिस इज -2 अल्फा, उधर जाएगा तो हो जाएगा +2 अल्फा, इसका मतलब हुआ गामा इज इक्वल टू अल्फा। क्लियर है? तो हमने गामा को ढूंढ लिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा को भी ढूंढ लिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा। नाउ लेट अस सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, जिसका हमें आंसर चाहिए, इसका आंसर चाहिए ना इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, चलिए ब्रैकेट में लिखते हैं बेस एंड दिस इज पावर। ब्रैकेट में लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा मतलब है माइनस अल्फा, उसका स्क्वायर तो भी हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। So gamma is nothing but again alpha. So it is also alpha square. ठीक, पावर में अगर हम देखें, पावर में क्या है, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा कितना है माइनस अल्फा है, बीटा इज नथिंग बट माइनस अल्फा। सो अल्फा माइनस बीटा मतलब यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा को अगर हम बीटा की जगह पर अगर हम माइनस अल्फा रखेंगे तो हो जाएगा अल्फा माइनस माइनस अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा दैट इज 2 अल्फा फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में है बीटा माइनस गामा, so beta is nothing but minus alpha and minus gamma is nothing but again alpha, so minus alpha it is -2 alpha। अब ये सारा कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है, काम की चीज यहाँ पर जहाँ से आपका आंसर मिलने वाला है गामा माइनस अल्फा, गामा इज नथिंग बट अल्फा। ठीक है, गामा इज नथिंग बट अल्फा, तो अल्फा माइनस अल्फा यहाँ पर हो जाएगा 0। दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ से आंसर मिलने वाला है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, देखिए अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 3 अल्फा स्क्वायर, ब्रैकेट रेज़ टू व्हाट 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय -2 अल्फा, सो इट इज -4 अल्फा स्क्वायर, व्हाटएवर इट मे बी, मल्टीप्लाइड बाय 0 है तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा। and we know that any non-zero number raised to 0 is always equal to 1। तो ये ब्रैकेट रेज़ टू 0 है, इसका आंसर हो जाएगा 1।